Hello, good evening, and thank you for joining us on the Heritage Stories and Performing Arts Facebook Live page. So, welcome, and all of you who have joined us, thank you once again for your continuous support and encouragement. And today, we are embarking on a new journey. Heritage Stories and Performing Arts. The aim was to, or is, to celebrate our cultural heritage, share and transfer the knowledge through stories and performing arts. And our concept of Itihas ke Panno se specifically focuses on the stories of unsung heroes from the pages of our history. So thank you all for your constant support. We have completed our season 1 of Itihas ke Panno se, where we had 8 storytellers share some amazing stories of unsung heroes. And today we begin our season 2. Yay. So thank you all. And this is only possible because of your constant feedback and support. That's why we decided to go ahead and continue Itihas ke Panno se. Our season 2, episode 1, comes to you from a very special state. So as guessed by a lot of you, the state is Punjab. Punjab, the state of 5 rivers. Punjab, the state of Makai di roti, sarson da saag. Punjab, the state of martyrs known for their bravery and valor and courage. And today, sharing the story of one such martyr is none other than Seema Wahi Mukherjee. Seema Wahi Mukherjee. Let me tell you a little bit about her. Seema is an international storyteller, a storytelling coach, an education consultant, and festival curator and organizer. Seema is the co-founder and on board of directors of Storytelling Education and Arts India Council. She's also founder of Traveling Bards and the co-founder of the Gatha Company. She considers storytelling as the most powerful medium to bring about personal and social transformation, and the only medium to bridge, bind, and heal the world. She subtly adds layers to the stories to uncover deep-rooted beliefs, exploring and challenging mindsets, developing social and cultural sensitivity, overcoming prejudices, and sowing seeds for alternative ways of thinking and conduct. Seema is proponent of storytelling in education. So welcome Seema Wahi Mukherjee with a little flavor of Punjab. ਉਹ ਸੱਚਿਆਂ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆਤਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਰ ਦੇ ਜਾਲਦੇ ਨੀ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਲੜਨ ਮਰਨ ਸੂਰੇ ਸਫਾ ਡੋਬਦੇ ਖੂਨੀਆਂ ਗਾਲਦੇ ਨੀ ਸਫਾ ਡੋਬਦੇ Wow. Welcome to Itihas Ke Panno Se, Seema. Thank you so much for being a part of the series. Welcome. Thank you so much, Sarita. I am very thankful to you, to HSPA, Heritage Stories and Performing Arts, and your initiative, Itihas Ke Panno Se, for inviting me to present the story of one martyr of a country today. It is our honor and pleasure to have you on board, and I shall now give the stage to you. Thank you, Sarita. आज मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ एक कहानी, भारत के वीर की एक कहानी। देखिए उसे मेरी नजर से और सुनिए उसकी कहानी मेरी जुबानी। एक हत्याकांड तब हुआ था 1919 में और एक हुआ 1940 में। एक मुकदमा तब हुआ था 1919 में और एक 1940 में। एक अदालत तब बैठी थी 1919 में और एक 1940 में। फैसला तो तब भी हुआ था 1919 में और तब भी 1940 में। पर न्याय
न्याय हुआ कि नहीं। एक शख्स, एक सरकार, 2 हत्याकांड, 2 मुकदमे, 2 अदालतें, 2 फैसले। न्याय हुआ ये तो तय आप ही कीजिएगा कहानी सुनकर। वो पानी पिलाने गया था। हमारे देश में पानी पिलाने को पुण्य का काम मानते हैं। वो पानी पिलाने गया था। 19 साल का लड़का, अनाथालय की ओर से अमृतसर में। अनाथालय ने भेजा था और साथियों के संग उसे पानी पिलाने। जी, वो अनाथ था। उसका जन्म हुआ था 26 दिसंबर 1899 को सुनाम नाम के संगरूर के एक गांव में, एक गरीब परिवार में। माता पिता ने नाम रखा था शेर सिंह। परिवार गरीब ही सही, पर माता पिता का सिर पर हाथ हो और भाई बहन हो तो सब अच्छा लगता है। पर शायद किस्मत को ये मंजूर ना था। 10 साल के होते होते माता और पिता दोनों चल बसे। वो और उसका बड़ा भाई अमृतसर के एक अनाथालय में पले बड़े, पढ़े और वहीं सिख भी बन गए। नया नाम मिला शेर सिंह को, उधम सिंह। चलो, अनाथालय में था पर भाई तो था साथ में। पर किस्मत को शायद उसका ये सुख भी मंजूर न था। जब वो 17 साल का हुआ तो उसका भाई भी गुजर गया और वो रह गया अकेला, पर अनाथालय में अपने अनेक साथियों के साथ। वो पानी पिलाने गया था 13 अप्रैल 1919 को एक 7 एकड़ के बड़े से मैदान में, जहां जाने का एक तंग रास्ता था, एक पतली तंग गली और आसपास थी बड़ी बड़ी दीवारें। वहां जमा हुए थे कुछ कहते हैं 5,000, कुछ 10 तो कुछ 20,000 लोग। बच्चे, बूढ़े, जवान, पुरुष, महिलाएं, थोड़ी सी, हर धर्म के, हर जाति के इकट्ठे हुए थे। कुछ आए थे उसी शहर अमृतसर से, कुछ आए थे आसपास के गांवों से। बैसाखी का त्योहार जो था, गोल्डन टेम्पल में मत्था तो टेकना था ना। और फिर उसके बाद इकट्ठे हो गए इस मैदान में, जलियांवाला बाग में। वहां कुछ बच्चे भी थे आसपास के घरों के, रोज जो वहां खेलने जाया करते थे। एक सभा चल रही थी जहां वक्ता अपनी बात व्यक्त कर रहे थे। वो 2 नेता जो उस शहर के थे और कुछ ही दिन पहले गिरफ्तार हुए थे, उनके बारे में बात कर रहे थे, लोगों को जागृत कर रहे थे। और वो पानी पिला रहा था उन सबको कि अचानक कदमों की चाप, किसके कदम थे वो मिलते जुलते एक साथ, ठप ठप ठप। 50 सिपाही और उनके साथ जनरल डायर घोड़े पर। सिपाही तैनात हो गए उस तंग दरवाजे जहां से सब बाहर निकल सकते थे वहां। और उसके बाद भीड़ हैरान थी। शायद कोई उन्हें वार्निंग देता, चेतावनी देता, पर ऐसी कोई वार्निंग नहीं आई। अगर कोई आवाज आई तो वो एक आदेश था जनरल डायर का, जनरल रेजिनाल्ड डायर का, उन सिपाहियों को फायर। और फिर अगले 10 मिनट चले गोलियों के 1650 राउंड, निहत्थे बेकसूर लोगों पर। हाहाकार मच गया, भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे, कुछ गिर गए और दब गए उस भगदड़ में। जाते तो कहां जाते, चारों तरफ दीवारें थीं, इधर उधर दीवारों पे चढ़ने लगे कुछ।
पर बंदूकों ने रुख बदला और वो चली वहीं जहां पे लोग दीवारों पे चढ़ रहे थे। वो घायल हुए, पता नहीं कितने मरे, और गोलियां दीवारों में भी धंस गईं। उसके बाद लोग भागे कुएं की तरफ। एक कुआं था वहां, शायद कुएं में कूद के जान बच जाती। कुछ कूदे, उसके बाद कुछ और जो नीचे थे वो सब दबते गए। और बाद में जब लाशें निकाली गई तो 120 थी उस खूनी कुएं में। और वो जो पानी पिलाने गया था, कहते हैं कि एक गोली उसे भी लगी थी। वो देख रहा था सब कुछ बेबस, हैरान, स्तब्ध। करता तो क्या करता, क्या करता। सुन रहा था उन सबकी चीखें, हाहाकार, वो चीखें जो उसके दिल को चीर रही थी, दर्दनाक चीखें घायलों की, मर्दों की। कुछ ना कर सका। पर उस दिन जब उस मैदान से बाहर निकला, उससे पहले उसने वहां की खूनी मिट्टी को अपने हाथ में लिया और कसम खाई कि वो इस हत्याकांड का बदला लेकर रहेगा। मुकदमा चला। अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी अदालत, और जिसने ये करवाया था वो भी अंग्रेज, जनरल डायर। उस पर ही मुकदमा चला। उसने बड़े आराम से कह दिया कि ये उसकी ड्यूटी थी। उसको सपोर्ट मिली माइकल ओडायर की। माइकल ओडायर जो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्हीं के आदेश पे हुआ था ये सब, उन्हीं के सिग्नेचर के बाद हुआ था ये सब। उन्होंने कहा यहां तक कि if there were to be a holocaust and one regrets that there should be, it was best in Amritsar. Best in Amritsar और worst in Amritsar? सबसे अच्छा अमृतसर में हुआ प्रलय, या सबसे बुरी थी वो? आज भी सुन के खून खौल जाता है, तो उसका कैसे ना खौला होगा जो पानी पिलाने गया था। खैर, फैसला तो हुआ। जनरल रेजिनाल्ड डायर को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। इंग्लैंड में उसे मिला हीरोज वेलकम। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बहुत वाहवाही हुई उसकी। हाउस ऑफ कॉमन्स में कुछ लोगों ने उसका विरोध भी किया, आलोचना भी की, कुछ पत्रकारों ने भी किया, पर हीरो ही माना गया बहुत सारे लोगों के लिए। और यहाँ तक एक पेपर ने तो उसके नाम पे बहुत सारा चंदा जमा किया, 26,000 पाउंड जमा किए, जिसकी राशि उसको गिफ्ट की गई। और उसने एक रिप्लाई भी लिखा जो उस पेपर में पब्लिश हुआ था, कि वो बहुत खुश है कि लोग सोचते हैं कि जलियांवाला बाग ठीक था और वो एक हीरो है। क्या कैसा था ये न्याय, क्या कहे। उस हत्याकांड ने न जाने कितने सैकड़ों लोगों की जिंदगी बदल दी। सरकारी आंकड़ों के अकॉर्डिंग 300 कुछ लोग मरे थे और 1000 घायल हुए थे, पर असलियत तो कहते हैं कि शायद 1000 मरे थे और उससे 3 गुना घायल। आज तक पता नहीं चल पाया कि असली नंबर क्या था। वो करवाने वाले को हीरोज वेलकम उसके देश में, और वो जो पानी पिलाने गया था, वो 19 साल का लड़का जब वहां से बाहर निकला तो वो 19 साल का आदमी था। प्यासों को ठंडक पहुंचाने गया था, वापस सीने में गुस्से और बदले की आग ले आया, जिसने उसे उसके जीवन का मकसद दिखलाया। इसके बाद उधम सिंह ने छोड़ दिया अनाथालय, वो चला गया अफ्रीका, कुछ काम किया,
कुछ देश के लिए, कुछ खुद के लिए। फिर वहां से गया अमेरिका, और कहते हैं 1924 में अमेरिका में गदर पार्टी से उसके संबंध और गहरे हो गए। वहां उसने कभी इलेक्ट्रिशियन का काम किया, कभी मैकेनिक का काम भी किया, और साथ साथ अपने देश के लिए भी वहां पे रहते देशवासियों को प्रेरित करने लगा कि देश को आजादी के लिए, देश की आजादी के लिए मदद करें। उसी समय उसका पत्र व्यवहार शुरू हुआ भगत सिंह के साथ। भगत सिंह, जिसकी कहानी भी, या जिसकी देशभक्ति की कहानी भी उसी जलियांवाला बाग से ही शुरू हुई थी। दोस्ती होती कैसे नहीं? कहते हैं हमारे खून का रंग होता है, एक होता है लाल, पर उन दोनों की रूह का रंग भी एक था, केसरिया। देशभक्ति में डूबा हुआ, बिस्मिल के गानों में, भारत माता को आजाद कराने में दोस्ती तो होनी ही थी जनाब। और फिर 1927 में एक दोस्त ने दूसरे को कहा, देश वापस आ जा। तो उधम सिंह अपने दोस्त की बात को टाल ना पाया और वापस आ गया भारत। पर अकेला नहीं आया, अपने साथ लाया 25 और साथी, बहुत सारे हथियार, गोला बारूद। पर भारत वापस आकर ज्यादा दिन आजाद नहीं रह पाया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया एक अनलाइसेंस्ड रिवॉल्वर को कैरी करने के लिए, और मिली 4 साल की सजा। 1931 में जब वो निकला, रिहा हुआ जेल से, तब सब कुछ बदल चुका था। उसका दोस्त भगत सिंह शहीद हो चुका था, फांसी के फंदे को चूम शहीद हो चुका था, हंसते हंसते भारत माता के लिए। क्या करता उधम सिंह, और क्या किया उसने? कहते हैं कुछ दिनों तक कुछ दुकान चलाई, फिर उसके बाद चला गया कश्मीर। कश्मीर में एक बार पकड़ा भी गया और उसके पास भगत सिंह की तस्वीर मिली। भगत सिंह को उसका गुरु मान लिया गया, और फिर जाने कैसे कश्मीर से बचकर निकल गया और पहुंचा जर्मनी, और फिर जर्मनी से 1934 में पहुंचा इंग्लैंड। इंग्लैंड में, लंदन में उसने अपने लिए एक घर खरीदा, एक गाड़ी खरीदी, अलग अलग तरह की नौकरियां की, वर्कर कैटेगरी की, कभी इलेक्ट्रिशियन की, कभी कुछ और। इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन भी ज्वाइन की, जो ना सिर्फ इंडियन वर्कर्स के लिए, बट इंडियन और इंग्लिश वर्कर्स दोनों के लिए काम कर रही थी। और रिसर्च करते हुए तो मैंने ये भी पढ़ा कि उसने 2 हॉलीवुड मूवीज में एक्स्ट्रा का रोल किया। पिक्चर है, दिखाऊंगी जरूर इसके बाद। पर इन सब के बीच वो जलियांवाला बाग का वो दृश्य भुला नहीं पाया, उन चीखों को भुला नहीं पाया, और अपने मकसद को भुला नहीं पाया। इंतजार था कि कब बदला लेगा। अब जनरल डायर तो रहे नहीं थे, क्योंकि 1927 में लकवे से उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद बाय द वे पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ उनका अंतिम फेयरवेल भी हुआ था। हाँ, उस सैकड़ों लोगों के हत्यारे को एक हीरोज फेयरवेल मिला था, मिलिट्री फेयरवेल। पर बचे थे माइकल ओडायर, उनसे तो बदला ले सकता था। 2-3 बार मौके मिले, पर ऐसे चूहे की मौत नहीं मारना चाहता था, मिसाल बनाना चाहता था उसकी। और फिर वो मौका आ ही गया। 13 मार्च 1940 के दिन रॉयल एशियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन ने एक सभा का आयोजन किया,
जहां बहुत से वक्ता आ रहे थे। माइकल डायर भी आ रहे थे। उसको पता चल गया पहले से, पूरी तैयारी कर ली, एक मोटी किताब खरीदी और एक पिस्तौल भी। पिस्तौल को किताब के बीच रख निशाना बनाया। निशान बनाने के बाद बहुत ही चतुराई से उन पन्नों को काट दिया और उसमें पिस्तौल रख दी या रिवॉल्वर। रखने के बाद जिस दिन सभा थी उस दिन वो भी वहां पहुंच गया। सभागार भरा हुआ था। एक लंबे से ओवरकोट में वो भी बैठ गया वहां, एक मोटी सी किताब हाथ में उठाए। सभा चली, वक्ताओं ने अपनी बातें पेश की और सभा जब खत्म ही होने वाली थी तो उधम सिंह उठकर गया स्टेज की ओर। मोटी सी किताब खोलकर अपनी पिस्तौल निकाली और चला दी गोली माइकल ओ डायर पर। 2 गोलियों में ही माइकल ओ डायर धराशायी हो गया। भगदड़ मच गई उस सभा में, लोग इधर उधर भागने लगे। चाहता तो वो भी भाग सकता था इस भीड़ में, चाहता तो और गोलियां चलाकर बेकसूर लोगों की जान भी ले सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। कुछ और गोलियां चलाई पर वो ब्रिटिश ऑफिशियल्स पे चलाई। फिर रुक गया और इंतजार किया कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तारी हुई और जब उसका नाम पूछा गया तो उसने कहा, राम मोहम्मद सिंह आजाद। जी हाँ, ये कैसा नाम जिसमें 3 धर्म एक साथ हो। उसने ये नाम जानबूझकर चुना था अपने लिए, क्योंकि अंग्रेज धर्म के नाम पे ही तो लड़वाते थे हिंदुस्तानियों को। उसने वो नाम अपनी बाजू पर खुदवा के भी रखा हुआ था। खैर, आगे किया था, जेल हुई। फिर चला एक मुकदमा। अंग्रेजी धरती पर अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी अदालत, और खून हुआ था एक अंग्रेज का। फैसला सुनाया गया, सजाए मौत। परेशान नहीं हुआ वो फैसला सुनकर, हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। जज ने पूछा, कुछ कहना है तुम्हें? तो बहुत लंबी स्पीच थी जिसमें कुछ बताती हूं मैं आपको। उसने कहा थोड़ा सा। उसने ये कहा कि उसे मरने का कोई गम नहीं, वो भारत माता पर कुर्बान होने जा रहा है, ये तो उसका सौभाग्य है। उसने ये भी कहा कि इसे इंग्लिश लोग, आम इंग्लिश लोग से कोई तकलीफ नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। वर्कर्स और फार्मर्स तो उसके दोस्त हैं। उसे प्रॉब्लम है तो है ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से, जिसकी वजह से भारत में लोग सड़कों पर मरते हैं, बच्चे भूखे रहते हैं, उससे प्रॉब्लम है। डाउन विद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, वंदे मातरम, ऐसा बोला था उसने। उसकी स्पीच लिखी भी गई थी, पर जज ने प्रेस को बोला कि ये स्पीच दबा दी जाए और ना किसी पेपर में पब्लिश की जाए। नहीं हुई। वो वापस जेल में भेजा गया। जब तक उसे फांसी ना हो जाए तब तक इंतजार करने। जेल में ऐसे ही नहीं रहा हो, अनशन किया, कुछ पत्र भी लिखे। पत्र में ये भी लिखा कि उसे आशा थी कि जब वो शहीदगी प्राप्त करेगा तो वहां दूसरी ओर उसे उसका दोस्त मिलेगा भगत सिंह। 40 दिन उसने अनशन किया, कुछ नहीं खाया। तो जानते हैं ब्रिटिशर्स ने क्या किया? उसके मुंह से एक नली डाली गई उसके पेट तक, जिसमें से उसे जबरदस्ती खाना खिलाया गया, उसके पेट में डाला गया ताकि वो उसको जिंदा रख सके उस समय तक, जब तक उसको फांसी देकर मार ना दे। वाह रे, कैसा न्याय है ये, कैसी सरकार है, कैसी थी,
खैर 31 जुलाई 1940 वो दिन आ ही गया। उसने फांसी के फंदे को चूमा और शहीद हो गया और बन गया शहीद आजम उधम सिंह। उसके पार्थिव शरीर को आप सोचते हैं क्या भारत भेजा होगा? नहीं, नहीं भेजा गया। पेंटोनविल जेल में वहीं पर दफना दिया गया। उसकी बात भी दबाने की पूरी कोशिश की गई कि लोग भड़क ना जाए, पर फिर भी सुभाष चंद्र बोस ने उसकी बहादुरी के बारे में चर्चा की। आनंद बाजार पत्रिका ने भी उसके बारे में लिखा, अच्छा लिखा, पर कुछ लोगों ने आलोचना भी की। भारत कुछ साल बाद आजाद हो गया, पर उसके पार्थिव शरीर वहीं पेंटोनविल जेल में पड़ा रहा, दफनाया हुआ। और फिर आजादी के काफी साल बाद 1974 में पंजाब के एक एमएलए ने पूरी कोशिश की कि उनके अवशेषों को वापस लाया जाए भारत, और वो खुद वहां गए लंदन और उनके अवशेषों को वापस लेके आए, जिसे रिसीव किया इंदिरा गांधी ने, ज्ञानी जैल सिंह ने और शंकर दयाल शर्मा ने। उनके अवशेषों को उन्हीं के गांव सुनाम, संगरूर के सुनाम में ले जाया गया और अंतिम संस्कार हुआ। कुछ अस्थियां सतलुज नदी में बहा दी गई, वहीं जहां उनके दोस्त भगत सिंह की भी बहाई गई थी। और कुछ कहते हैं आज भी है जलियांवाला बाग में, और उनका एक बड़ा सा स्टैचू भी है। वो जो पानी पिलाने गया था, 19 साल का लड़का, बाहर आया तो 19 साल का आदमी था। प्यासों को ठंडक पहुंचाने गया था। अपने सीने में गुस्से की, दुख की, बदले की आग जला लाया, जिसने उसे शहादत तक पहुंचाया। और 40 साल की उम्र में शहीद आजम का खिताब पाया। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया शहीद आजम उधम सिंह उर्फ राम मोहम्मद सिंह आजाद। धन्यवाद। Seema, the story was so heartwarming, and वो जो पानी पिलाने गया था, I can, I saw the entire massacre through his eyes. I heard the round of fire. I saw the bloodied well. I saw his journey. So I'm so overwhelmed. I have no words. Thank you so much for bringing the story of Udham Singh on Itihas Ke Panno Se. And I think I will keep quiet right now. A big hug to you. Yes. Thank you so much. And I believe you have some pictures that you would like to share. I'm sure the viewers would like to see and Udham Singh and his journey. Definitely. I'll just share those. Yes, please. Just give me a moment. Okay. Is it okay if I share like this? Yes, I think that should be fine if you can put Okay. the slide So show. शहीद आजम उधम सिंह, जिनका नाम था शेर सिंह, उनका नाम उदय सिंह भी था, और कई जगह पे उनका नाम फ्रैंक ब्राजील भी था, और फाइनली जो नाम उन्होंने अपना बताया था, राम मोहम्मद सिंह आजाद। ये उनके कुछ पिक्चर्स हैं, ऐसे दिखते थे वो। और ये पिक्चर जो ली है, ये जब उन्होंने सर माइकल डायर के पर गोलियां चलाई थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद की है। देखिए चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई डर नहीं है, हंस रहे हैं। जिंदगी का मकसद पूरा जो हो गया उनका। ये पिक्चर में ये उधम सिंह जी हैं, और ये फोटोग्राफ मुझे मिली जिसमें लिखा था शहीद उधम सिंह विद हिज फ्रेंड्स। ये फोटोग्राफ
ली गई थी गवर्नमेंट हाई स्कूल सुनाम में ईयर 1933 में, और वो बीच में खड़े हैं. Seema, do you want to put it on a slideshow? Because I think that will help them Yeah. see it clearly. Yes. Okay. Here. From here only? Yes, from there you can put it. From the bottom otherwise. Is that better? Yes, this is great. Thank you. Okay. So, ये picture, सरिता मैं दोबारा बताऊं क्या? हाँ, I think that would be nice. ठीक है, तो ये पिक्चर उनकी है, जो बीच वाली पिक्चर है जहां वो हंस रहे हैं. ये ली गई थी जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, जब उन्होंने सर माइकल डायर की हत्या की थी. उसके बाद, गिरफ्तारी के बाद की. उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, डर नहीं है, हंस रहे हैं. जिंदगी का मकसद उनका पूरा हो गया है. ये पिक्चर है, गवर्नमेंट हाई स्कूल में ली गई थी सुनाम में 1933 में. वो बीच में खड़े हैं अपने दोस्तों के साथ. ये पिक्चर ब्रिटेन की है और वो यहाँ पीछे अकेले खड़े हैं. Okay, there he is. Yeah, here. Okay. And this is what he said. What greater honor could be bestowed on me than death for the sake of my motherland? Amazing. Look at his ये eyes, picture such वो है. determination. जी, His बोलो eyes. बोलो सरिता. His eyes in that picture, there's such determination in his eyes, and he's so Yes. sure about what he wants to do. Yeah. और ये पिक्चर जो हॉलीवुड की 2 मूवीज जिन पे उन्होंने रोल किया था, ये एलिफेंट बॉय से है. ये बीच में है उधम सिंह जी. Okay. He kept himself busy while he was simultaneously working He on kept himself, absolutely, he made friends, he kept himself busy, he participated in different things, and yet he did not forget his purpose. ये गिरफ्तारी के बाद उसी पिक्चर का बड़ा फॉर्म, वो क्लोजअप था. ये कुछ आर्टिकल्स थे उनके बारे में जो छपे थे. बहुत कम छपा था क्योंकि सब कुछ दबाया जा रहा था, सप्रेस किया गया था. सप्रेस किया गया था. उन्होंने कहा था कि अगर उनकी मौत की खबर जाएगी, शहीदगी की खबर जाएगी, तो 10,000 लोग और जमा हो जाएंगे और वो यही करेंगे. तो शायद डर भी था. लोग नहीं. और वंडरफुल. और उनकी स्पीच आपको मिल जाएगी विकिपीडिया पे, जो स्पीच उन्होंने दी थी. और जज ने बोला कि ये स्पीच दबा दी जाए और प्रेस रिलीज नहीं करेगा. वो स्पीच बाद में निकल के आई. ओके. तो थोड़ी लंबी स्पीच है सरिता, आप चाहते हो मैं पढूं या लोग पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पे? I think people can go ahead and read it. Now that you all have heard this story of this amazing personality, I'm sure you can do some research. You would want to do some research. And I think we can move on, Seema. Okay. So I just want to read this, Sarita, फिर भी एक चीज, that I do not care about sentence of death. It means nothing at all. I do not care about dying or anything. I do not worry about it at all. I am dying for a purpose. We are suffering from the British Empire. I am not afraid to die. I am proud to die, to free my native land. And I hope when I'm gone, I hope that in my place will come thousands of my countrymen to drive you dirty dogs out, to free my country. वो जो पानी देने गया था, वो जो पानी पिलाने गया था. Okay. और मुझे उनके बारे में एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो ये थी कि he had the discretion to know who he was against. He said that I have nothing against the English people at all. I have more English friends living in England than I have in India. And I have great sympathy with the workers of England. I am against the imperialist government. So वो clarity भी थी उनको कि सब ऐसे नहीं है. जो discretion बहुत बार लोग खो देते हैं. Absolutely. वो अंधे हो जाते हैं उस आग में, गुस्से की आग में, प्रतिशोध की आग में.
especially when he's been carrying it for so many years, you know. So it's wonderful to see. That mind, how it worked. Yeah. Yeah. Please carry on. Okay. And then, okay, so do you know who he is? ये उनकी एक कजन थी आस्कौर, ये उनके ग्रैंडसन हैं, तो एक वे में उनके डिसेंडेंट हैं। और कुछ साल पहले तक जानते हैं क्या कर रहे थे? एक फ्रीडम फाइटर के डिसेंडेंट, वो एक डेली वेज लेबरर थे, ईंटें उठाते थे, और बहुत ही कर्जे में डूबी हुई थी उनकी फैमिली। फिर मैंने पढ़ा बेटर इंडिया पे, जो आप भी पढ़ सकते हैं, कि एक शिवनाथ झा जी हैं जो काम कर रहे हैं ये फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स को खोजने का। और कुछ 35 फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स को उन्होंने ढूंढा है। और ढूंढकर ज्यादातर उन्हें ये पता चला है कि ज्यादातर बहुत ही गरीबी से गुजर रहे हैं। तो उन्होंने उनके लिए पैसे रेस किए, आम आदमी से, ऑर्गेनाइजेशन से, सरकार से नहीं, और 11 लाख रुपए दिए इनको। So जो भी देख रहे हैं, please go and check and do contribute if it's still going on. We can do our bit for the martyrs who you know, helped us enjoy the freedom that we are enjoying today. और मैं शिवनाथ झा जी को नहीं जानती, मेरी उनसे कभी बात भी नहीं हुई, पर जब मैंने बेटर इंडिया पे ये पढ़ा, I was very impressed with it. ये लिंक भी है, अगर कोई देखना चाहे तो जा सकता है। Thank you for sharing this, Seema. Okay, and that is the end of the slideshow. Wow. So we have with us some other storytellers also, and you know, I would like to invite everyone on board to switch on their videos and join us. And Seema, once again, I am still you know, absorbing that story, and I'm still having those goosebumps. So yes, we have Rishali Patkar, who was there in our season 1. Shubha Das, welcome. And all the others who are here, we have Shri Karuna, Yogita. Please join us and share your thoughts about wo jo pani pilane gaya tha. I'll never forget that. An engaging story, Seema. I'm as it is a big fan of your telling, and this story is a completely different level. Thank you so much. Nandita, you need to, yeah. Thank you so much, Shubha. Just 2 years back, I had visited Jallianwala Bagh, and today when you were narrating the whole thing, the whole place was, you know, just flashing in front of me. It was absolutely goosebumpy. Thank you so much. Thank you, Shubha. Knowing what a wonderful teller you are, coming from you, it's a great compliment. Seema, I have always seen you narrating soft, sweet stories, kid stories, Pikuka story, this and all that. And I was waiting eagerly ki ye jo, I mean, like, it is full of, you know, so much of barbarism and all. Ye Seema ki sweet chehre pe kaisa, but my God, it was so mind-blowing, all that expressions, khoon khaulna and all that. Pani pilane gaya tha, comes so soft, and again khoon khaul raha tha. Oh my God, what an array of emotions. You're too good, man, my God. I mean, like, history mein pada Jallianwala Bagh and General Dyer and all that, but when you were narrating, truly could just wo hahakar and all that. That ek movie jaisa scene aankhon ke samne, you know, I just could feel it. Wonderful narration. Hats off, mere guru. Thank you, Karuna. Thank you so much. I know, I could just visualize it, and I was into it. It was different world till the time you were talking, and I could feel the anger of Udham Singh in me for that matter. It was that strong. It was and there was so many scenes where I had goosebumps all over. Yes. So many scenes where I wanted to just cry, and you know, and there were so many scenes where I was so angry, like when you talked about the Holocaust, and I was like, you know, that was something which, there's so much that Indians all over have you know, taken the brunt of during that time, and we can only imagine. So it was really, Seema, you want to tell us something more about what you came across and, you know, want to share? Sarita, मेरे को एक ख्याल जरूर आया था
और अभी भी वो थोड़ा परेशान करता है कि okay, Anandita is saying that I could feel everything with the story. It made me very emotional. Awesome story. Thank you, Anandita. So for Thank you those so who don't know much. Anandita, that is Anandita Nair, my daughter, and she's our support for everything that Big support. Please show your face, Anandita. So I think you put Very her on a nice. spot. Yeah, so let's go back to Seema. तो मेरे को एक मतलब मुझे एक चीज बहुत परेशान कर रही थी कि ऑर्डर तो जनरल डायर ने दिया था, पर चलाने वाले तो हिंदुस्तानी थे ना. जी जी. सो हम अपने ही लोगों पर ऐसे गोली चला पाते हैं किसी के ऑर्डर पे. तो वो बात मुझे अभी भी परेशान कर रही है, और शायद इसीलिए हम पे अंग्रेज रूल कर सके. तो ये, और उस समय कुछ ऐसा था जो मैंने पढ़ा, कुछ अलग अलग आर्टिकल्स में जो रिसर्च करने की कोशिश की, जी. कि उस समय 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो रही थी, और उसके बाद बहुत सारे सैनिक जो वर्ल्ड वॉर 1 में एनरोल किए गए थे और भेजे गए थे पार्टिसिपेट करने के लिए, और पंजाब से शायद कुछ 3,55,000 पढ़ा था मैंने. 3 लाख from Punjab only. या 55,000 यही पढ़ा था, जो जितना मुझे याद है उस आर्टिकल जी, में. तो जी. उसमें जब ये लोग वापस आए तो इनके पास कोई काम नहीं था, Okay. और कुछ कमाने का जरिया भी नहीं था. फिर उस साल फसल भी बहुत खराब हुई थी, तो रिजेंटमेंट तो थी बहुत सारी. भूख तो बहुत कुछ कराती है लोगों से, और बहुत सारी चीजें जो आप सह रहे होते हो वो सही भी नहीं जाती है. तो और उसी समय एक रॉलेट एक्ट भी आया था, जो एक ड्रैकोनियन एक्ट माना जाता है, जिसमें किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था बिना किसी सुनवाई के, और 2 साल की सजा हो सकती थी. तो इन सब के बैकग्राउंड में मैंने पढ़ा कि ये हुआ जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग होने के बाद कुछ पेपर साइन किए गए जिसमें बोला गया, जो बैकडेटेड थे, Okay. जिसमें बोला गया कि ऐसा कर्फ्यू है, लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. तो Oh. ये गांव वाले तो कुछ नहीं जानते थे, जो इतने सारे बाहर से त्योहार मनाने आए थे, और बैसाखी का त्योहार तो बहुत ही बड़ा है. जी. तो शायद एक वो बैसाखी थी, एक ही वो बैसाखी होगी जिसे बुलाया जाता है खूनी बैसाखी. Oh God. Okay. और 120 bodies in the well and 1,650 rounds of fire. एंड दे से जो सर्वेज हुए या कुछ हुआ, बहुत सारे लोगों ने तो क्लेम में पैसे भी नहीं मांगे. बोला भी गया कि कुछ क्लेम्स होंगी, बहुत लोग बोले भी नहीं. कुछ की कहानियां अब निकल के भी आ रही हैं. तो कहते हैं कि 1,000 लोग तो मर ही गए थे, जबकि सरकारी आंकड़े ये नहीं बताते. तो और बहुत सारे जो घायल थे वो उन वुंड्स के साथ रहे. कईयों के तो बहुत ही बुरे वुंड्स थे. That was the cruelest act which is said during the British Empire. So, and something which वो जो पानी पिलाने गया था, he carried with him till he grew up and till he was able to do something. yeah. And his story is hardly known. And so thank you so much for bringing his story to us. And so I'm again speechless with your story. And thank you for sharing those pictures, because I think it was very nice that we could all put a face to Uttam Singh and see his life and see his Hollywood, glimpse. And what a wonderful personality. I am so amazed by the way his mind worked, how he strategically, got himself connected to people outside of India. And through the time, he joined those parties and similar thinking people. It was such a step-by-step, many of us, we have goals in our life, and these are all small goals. And, how many of us are actually able to do what we think so systematically? And for him to carry that in his heart, and go there and see an end to it, and smilingly go, and his end, the gruesome end, when you told me about the tube inside, it was so, what a way to die.
each and every story that's coming on Itihas Ke Pannon se is showing that determination, that grit, that motivation, and each and every one had that. That single soul. पता नहीं किस मिट्टी के बने थे वो लोग ना, आजकल देख के लगता है बिल्कुल, मतलब मौत को गले लगाते थे और हंसते हंसते शहीद हो जाते थे। और इतना क्लियर गोल है, मतलब देश के लिए करना है। और यू नो कोइंसिडेंटली इतिहास के पन्नों से came with the thought when people were being asked to put the mask when you step out or stay at home to be safe, and I heard a lot of people saying कि मास्क डालना पड़ेगा, हमें घर में नहीं रहना। and I was like, अरे what about these people जो मतलब उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ के देश के लिए इतना कुछ किया और हम घर पे नहीं बैठ पाते, you know, and खुद के लिए खुद के लिए किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। So you're right, किस मिट्टी के बने थे, and I hope all of us, our next generation, our children, are able to take that from these stories, and that's what we want to do with Itihas Ke Pannon se and the stories. So thank you for sharing this wonderful story, and it was you know, we could feel each and every emotion from you. Thank you so much, Sarita, and thank you again to HSPA and Itihas Ke Pannon se for inviting me and also for bringing such beautiful stories to people. Thank you so much. It's with the support of all of the storytellers who are part of it, and we have another 2 months, October and November, where we're going to have some amazing stories come your way. So viewers, thank you so much for joining us this evening, and I'm sure you have felt what we all felt here. And do write in with your feedback and what you think about the story. Do watch it, do share it, do like it. Let's spread the word about these wonderful stories of unsung heroes. And with that, I would like to take leave from the live Facebook page. So thank you all for joining us this evening. Do watch our next episode next Friday, 7 p.m.